Welcome to Chameleon Classes. In this video, we would be studying about free energy reactions, their concept, Gibbs free energy, and how free energy change predicts the nature of a chemical reaction. Free energy concept. As earlier studied, cells need energy to do work for their survival and reproduction. So basically, जो amount of energy system में available है work करने के लिए at the constant temperature and pressure, that energy is free energy change. Free energy का concept विलर्ड गिब्स ने 1870 में दिया. There is an equation known as Gibbs free energy equation, that is delta G is equals to delta H minus T delta S. यहाँ पर delta G is Gibbs free energy in kilojoules, delta H is enthalpy change, T is temperature in Kelvin. If we are having temperature in degrees Celsius, just add 273 to it for converting in Kelvin units. And delta S is entropy change in kilojoules per Kelvin. Now if we talk about enthalpy, enthalpy is a measure of how much energy is released or absorbed during a chemical reaction. Energy heat की form में exothermic reactions में release होती है and वही heat endothermic reactions में absorb होती है. So it can be said that change in enthalpy is change in the heat content. Cellular reactions occur in the environment at constant pressure and volume. Change in enthalpy, either positive or negative, equals to change in total energy during the reaction. Change in entropy वो proportion है energy change का जो system use नहीं कर सकता work में. There are two main components of the Gibbs free energy equation, that is delta H and delta S. Delta H is a drive towards stability, means ये reaction को stability provide करता है, and delta S is the drive towards disorder, मतलब ये system को disorder की तरफ ले जा रहा है. Here net driving forces delta G as seen in the equation, delta G is equals to delta H minus T delta S. Gibbs free energy ये थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है जिससे ये बता सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं. डेल्टा जी इज नेट ड्राइविंग फोर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. डेल्टा जी वैल्यूज टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. अगर डेल्टा जी 0 से कम है मतलब नेगेटिव डेल्टा जी है, देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड फेवरेबल. इस केस में पॉजिटिव चेंज होगा एंट्रोपी में. अगर डेल्टा जी 0 से ज़्यादा है मतलब delta G positive है, reaction is non-spontaneous and less favorable. If delta G is equals to 0, then reaction is at equilibrium, means अब कोई change नहीं हो रहा reaction में. Now we will study about relationship between entropy, that is delta S, and change in free energy, that is delta G, considering Greek myth of Sisyphus, who was the king of Corinth. तो जो किंग था सिसाइफस, उसने जितने भी क्राइम किए तो गॉड के सामने उसको सजा दी गई कि उसको एक लार्ज रॉक को हिल के टॉप पर लेके जाना है फॉर द लाइफ टाइम. दिस रिप्रेजेंट्स दैट नेगेटिव चेंज इन एंट्रोपी. अब एक बड़ी सी रॉक है, वो अपने आप तो ऊपर जाएगी नहीं हिल के, हमें एनर्जी पुट अप करनी पड़ेगी जिससे कि वो हिल के ऊपर पहुंच जाए. एंड दैट रॉक इट इज नाइदर रैंडम नॉर डिसऑर्डर बिकॉज इट्स इन इट्स ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ स्टेट. And this reaction has the positive delta G. Now the Sisyphus had to put a lot of energy into the system. Unfortunately क्या होता है, as soon as Sisyphus उस रॉक को हिल के टॉप पर लेके जाता है, but it rolls back down. This represents the positive change in entropy and the negative delta G. Sisyphus को इस बार कोई एनर्जी पुट अप नहीं करनी पड़ी. उसे बस ये था कि आराम से खड़ा रहे हिल के ऊपर और रिएक्शन को देखे एंड फिर से एनर्जी पुट अप करे जिससे कि वो रॉक वापस से हिल के ऊपर लेके जाए. फ्री एनर्जी चेंज प्रिडिक्ट्स द नेचर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. चेंज इन फ्री एनर्जी हैज डेफिनेट एंड कंक्रीट रिलेशनशिप टू द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन. लेट अस कंसिडर द सिंपल रिएक्शन A+B कंबाइन टू फॉर्म C+D. यहाँ पर जो डबल हेडेड एरो है ये दिखाता है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, मतलब जितना A+B कंबाइन करके C+D बना रहा है उतना ही C+D वापस से A+B बना रहा है. अगर A और B मॉलिक्यूल्स को हम मिक्स कर दें तो C और D प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे एंड C और D इतने कंसंट्रेटेड हो जाते हैं कि वो कंबाइन करके A एंड D प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसी रेट पर जिस पर C एंड D फॉर्म हुए थे. नाउ द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट क्योंकि A एंड B रिएक्टेंट्स
C एंड D प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे ही C एंड D A एंड B बना रहे हैं। तो दोनों डायरेक्शन में रेट ऑफ द रिएक्शन सेम है एंड कोई फर्दर चेंज नहीं हो रहा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में। इस सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KEQ से डिस्क्राइब कर सकते हैं। KEQ is equal to the concentration of products divided by the concentration of the reactants। अगर KEQ लेस देन 1 है तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगी एट द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्री एनर्जी चेंज। अब फ्री एनर्जी चेंज हम डिटरमाइन करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर, pH एंड टेम्परेचर, देन इट इज नोन एज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा G नॉट। अगर हम pH सेट कर दें 7 पर, दिस pH इज क्लोज टू द pH ऑफ द लिविंग सेल्स, तो हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को डिनोट करेंगे डेल्टा G नॉट डैश से। नाउ लेट अस डिफाइन द चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल है सिस्टम में फॉर द यूजफुल वर्क टू बी डन अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस। इन्वायरमेंटल कंडीशंस में डिफरेंसेस की वजह से डेल्टा G में जो वेरिएशंस होते हैं हम वो कंसिडर नहीं करते इन कंपैरिजन ऑफ द रिएक्शंस यूजिंग द डेल्टा G नॉट डैश वैल्यू। Relationship between delta G naught dash and equilibrium constant is given by the equation delta G naught dash is equals to minus 2.303 RT multiply log KEQ। यहाँ पर R is the gas constant जिसकी वैल्यू है 1.9872 कैलोरीज पर मोल डिग्री और 8.3145 जूल्स पर मोल डिग्री एंड T is the absolute temperature। इस इक्वेशन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं रिलेशनशिप ऑफ द डेल्टा G नॉट डैश टू द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शंस। एक्सर्गोनिक रिएक्शंस में KEQ मोर देन 1 होता है एंड द डेल्टा G नॉट डैश इज नेगेटिव। These reactions are spontaneous and occurs without the addition of energy, whereas endergonic reactions में KEQ less than 1 होता है and delta G naught dash is positive. These reactions require the input of energy. डेल्टा G नॉट डैश की वैल्यू नेचर ऑफ द रिएक्शन बताती है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होती है, नॉट हाउ फास्ट द रिएक्शन इज अटेनिंग द इक्विलिब्रियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल Chameleon Classes. Follow us on Facebook, Instagram and Twitter page.